Praise the Lord and welcome to Promise Life Anugerah. We're so incredibly glad that you could join us for our online service once again. Hey church, we know that you're joining us from all over Auckland and we thank you for tuning in again. We've also got some visitors from abroad and also within New Zealand. So thank you again for taking out your time and joining us this morning for our online service. We know that you'll be well and truly blessed by it. Hey, look, church, I just want to encourage you to be participants of this service rather than observers. So why don't we all stand to our feet, grab your Bible as we read the morning scripture for this morning, which will be found in Psalm chapter 51 from verse 10 to 12. And it says, "Create in me a pure heart, O Lord, and renew a steadfast spirit within me." 11. "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me." Verse 12. "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Verse 10 starts off by saying, "Create in me a pure heart." And before the lockdown started, we were studying about the Beatitudes, and Pastor Simon will come along later this morning and continue our study from Matthew chapter 5. And he will specifically focus on blessed are the pure in heart, for they will see God. And I just want to continue down to verse 11 that says, "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me." The psalm is very clearly stating and is grateful for the Holy Spirit, which we know is a comforter and has been sent as a helper from the Lord. And so within this time that we're going through, we need the Holy Spirit now more than ever. Verse 12, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." We've celebrated Easter not too long ago now, and we're so incredibly grateful that the Lord died on the cross of Calvary for our sins, and that salvation, the price that he paid to give us a free gift, we know that the salvation, the joy that it brings to us should be everlasting. And again, just a reminder, restore to me the joy of your salvation. Lord, we are so thankful for your salvation. We are thankful that you gave us a free gift. Let's continue standing as we go into our prayer this morning. The other thing, church, that we started this week is our chain prayer. We're doing it every Tuesday and every Friday. As you know, we are people of prayer. We are people of promise, and we can't gather together to do our Tuesday healing and deliverance services. We can't gather together to do our Friday general prayers in church from 7 p.m. But what we have started is a chain prayer on Tuesdays and Fridays, starting from 6 a.m. going all the way around to 6 p.m. And if you haven't taken a 30-minute slot, I urge you to do so. Get in touch with us. Give us a 30-minute slot that you want to pray. We can even double up slots. Just get in there and make sure that you're doing it. And I just want to say that it has been very, very beneficial for our church. It has been great. It has been amazing to see everyone put in their time and effort into praying for our country, praying for our congregation, praying for their families. If you're not involved, I definitely urge you to do so. So hey, look, why don't you continue standing with me as we go into prayer this morning. Dear Heavenly Father, we are so grateful to be found in your presence. Thank you that you have kept us whole, safe. Thank you that your blood, your spirit covers us, surrounds us. Lord God, we thank you that you have said in your word, "For I know the plans I have for you, plans to prosper, not to fail, plans to give you a hope and a future." Lord God, we thank you that you have sent your Holy Spirit to continue working in us, to minister in us, dear Father, throughout this week. We are grateful that we have been found before thy throne of grace, giving praise, giving you the thanks that you well and truly deserve. Lord God, we pray for this service. We thank you. Continue to minister in us as we go into our praise and worship and as we hear the word this morning. Father, we thank you. We ask for your grace and your presence to surround us as we continue our day. In Jesus' name I pray. Amen. Church, why don't you continue standing with me and join us in praise and worship. Over to the team.
तो मुक्ति हुआ, तूने प्राण दिया यीशु, तूने मुझे कैसा प्यार किया। मैं तो मुक्ति हुआ, तूने प्राण दिया। मैं तो मुक्ति हुआ, तूने प्राण दिया। यीशु प्यार तेरा मैंने जान लिया। मन का राजा तुझे मान लिया। यीशु प्यार तेरा। तुझसे दूर रहा, गम से छू रहा, चरणों में रहूं यही ठान लिया। तुझसे दूर रहा, गम से छू रहा, चरणों में रहूं यही ठान लिया। चरणों में रहूं यही ठान लिया। यीशु प्यार तेरा मैंने जान लिया। मन का राजा तुझे मान लिया। यीशु प्यार तेरा। मन में छाई घटा, दिल में बोझ भरा, जब मैंने नहीं तेरा ध्यान दिया। मन में छाई घटा, दिल में बोझ भरा, जब मैंने नहीं तेरा ध्यान दिया। जब मैंने नहीं तेरा ध्यान दिया। यीशु प्यार तेरा मैंने जान लिया। मन का राजा तुझे मान लिया। यीशु प्यार तेरा मैंने जान लिया। मन का राजा तुझे मान लिया। यीशु प्यार तेरा। प्रभु की जय। प्यारे दोस्तों, सभी को स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जो इस माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। हम जानते हैं कि आज इतवार है, जबकि प्रभु का दिन हम लोग सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी जय जयकार, उसकी महिमा करते हैं। और हम जानते हैं कि अब की बार कुछ माहौल कुछ ऐसा है कि हम अपने घर से ही प्रभु के वचन को सुनते हैं और हमारा घर कलीसिया बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। तुम जानते हैं कि प्रभु ने हम परिवार को घर दिया है, उसमें हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परिवार के साथ मिलकर। और हम लोग अच्छा ईस्टर को मनाए थे और अच्छा समय बीता हमारा। और हम आज जानते हैं कि प्रभु के वचन को फिर एक बार फिर आपके घर में हम लेकर आते हैं। और हम लोगों ने जो पहाड़ी उपदेश पर कुछ चर्चा किया था, हम लोग जारी करेंगे आज। We have talked about the beatitude, a beautiful saying of the Lord on the mountain, and we will continue again. This would be the third blessed words.
सॉरी इट वुड बी द 6th ब्लेस्ड वर्ड। हम लोग देखेंगे इस समय मत्ती रचित समाचार अध्याय 5 पद 8 को। और आज का जो वचन है वो है ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। धन्य है वे जिनके मन पवित्र है, वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम जानते हैं कि हमारा मन शुद्ध होना है, तभी हम परमेश्वर को देख सकते हैं। और हम देखेंगे आज वचन में और उसकी कुछ गहराई में जाएंगे और हमें जानकारी मिलेगा कि किस तरह से प्रभु ये कहा है कि हम अगर उसको देखना चाहेंगे तो हमारा मन शुद्ध रहे ना। इफ यू वांट टू सी गॉड, द थिंग इज दैट वी नीड टू हैव अ प्योर हार्ट। A person who has pure heart is only qualified to see God face to face. Praise the Lord. So हम लोग आज देखेंगे कि pure heart इसका मतलब क्या है और why God calls us to have a heart, with purity. परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमारा मन शुद्ध रहे? Praise the Lord. What is pure? Pure is something holy or spotless, righteous, or purity, or there is no fault, there is goodness in it. और हम लोग देखता है कि these all contributes to purity of heart. हम लोग देखता है कि ये सब बातें जो है धार्मिकता है, पवित्रता है और सच्चाई है और जो अच्छाइयाँ हैं, और ये सब हमें शुद्ध आत्मा के विषय में बताता है। तो हमें देखता है कि प्रभु यीशु मसीह जो था वो निष्कलंक अवतार बनकर आया और उसमें कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। और हम जानते हैं कि उसका जो रिश्ता था पिता परमेश्वर से इतना कटुट था। और हम जानते हैं इसी तरह से परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह जब अपने 12 चेलों के साथ में बैठकर चर्चा कर रहा था, वो चाहता था कि हर एक जो विश्वासी है वो परमेश्वर को देखे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम जानते हैं कि आज हमारे और तुम्हारे भी ऐसे भावना है कि हम परमेश्वर को देखें। और एक व्यक्ति हम जानते हैं ओल्ड टेस्टमेंट में the one who brought the 10 commandments, the law into the world, he wanted to see God badly because God spoke to him many times. God shown his power many times. परमेश्वर ने बहुत बार उसको अपना जलवा दिखाया, सामर्थ का काम किया, उसको पुकारा जंगल में से। और हम जानते हैं कि 10 आज्ञा उसको दिया है और वो चाहता था परमेश्वर को देखने के लिए। And so God said, you will see me. And God showed him a part of him. हम लोग देखता है कि परमेश्वर उसको एक झलक दिखाया कि वो किस तरह से। उसके बाद हम जानते हैं ये जो मूसा जो 10 कानून को लेकर आने वाला था, उसका चेहरा इतना चमकने लगा कि उसको मुख पर वेल को डालना पड़ा। We see that when he saw God, his countenance was changed. He was so shining and glowing, so he had to put a veil and cover his face. Praise the Lord. तो हम लोग देखता है कि हमारा मन ना शुद्ध रहे तभी हम परमेश्वर को देख सकते हैं। और हम जानते हैं कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे भैया हमारा दिल तो साफ है, मन में हमारा ना कोई कोट नहीं है। तो हम लोग देखता है किसको देखता है, किसके मन को हम लोग जान सकते हैं। मगर हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुकूल ही हम जान सकते हैं कि हमारा मन कैसा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर शाम्स भजन संहिता की पुस्तक हम देखेंगे, व्हेन वी टर्न टू शाम्स चैप्टर 51 वर्स 10, शाम्स सेज दैट क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी। परमेश्वर से ये दुआ करता है, शामिस्ट कहता है, ये परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं यही प्रार्थना हमारा और तुम्हारा होना है कि परमेश्वर हमारे अंदर में शुद्ध आत्मा उत्पन्न हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट को हम देखते हैं ना हमारे ख्यालात से कि हमारा अगर हम शुद्ध होना चाहते हैं तो हमारा विचार शुद्ध होना ज़रूरत है। राइट, हमारा ज़िंदगी का शुद्ध हम देखना चाहते हैं कि जो हमारा मन शुद्ध होए, तो हम जानते हैं कि हमारा विचार अगर शुद्ध है तो हमारा मन शुद्ध हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तभी हम परमेश्वर को देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा पहला पॉइंट है प्योर थॉट, शुद्ध विचार। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक दिमाग है, जो दिमाग बहुत ताकतवर है। इट इज़ अ पावरफुल इंजन, और माइंड इज़ अ पावरफुल इंजन, एंड इट इज़ सो मेनी
it has so many ideas, it is so many schemes, and it's it is it has so much creativity in it, right? और तो हम लोग देखता है कि ये सब चीज़ें ना हमारे दिमाग में से आता है, जो आइडिया से जितने भी अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ ये सब हमारे दिमाग से आता है, राइट? धर्मशास्त्र इसीलिए कहता है कि एज मैन थिंक सो इजी, जिस तरह से एक मनुष्य सोचता है उसी तरह से वो होगा। प्रेज, उसको हम बदल नहीं सकते हैं, वो इंसान उस तरह से होगा जैसे उसका विचार हो। तो हम जानते हैं कि आज लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है। किसी ने कहा कि हमारा दिमाग जो है इट इज़ अ प्लेइंग ग्राउंड फॉर डेवल, शैतान के मुठभेड़ का स्थान हमारा दिमाग है, और ये दिमाग को हमें काबू में रखना है। इसीलिए धर्मशास्त्र हमसे कहता है रिन्यू योर माइंड डेली, हम अपने दिमाग को हर समय उसको परिवर्तन करें, उसको हम लोग सुधारें, उसको हम लोग सीधे लाएं रास्ते पर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग नहीं चाहते हैं कि शैतान हमारे अंदर में होकर, हमारे दिमाग में होकर हमारे जीवन को बर्बाद कर सके। डू नॉट लेट द डेविल ब्रीड इन देयर। प्रेज द लॉर्ड। वॉश योर माइंड विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से अपने दिमाग को साफ करना। कैसे हम परमेश्वर के वचन से दिमाग साफ करें? मेमोराइज करें परमेश्वर के वचन को, उसको याद करें। जब हमें मौका मिलता है खाली समय में हम उसको ख्याल करते रहें, उसको हम लोग बोलते रहें, प्रेज, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में जाए, उसके द्वारा हमें और ताकत मिले, सामर्थ्य मिले, आत्मिक तौर से हम आगे बढ़ सके प्रभु में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तो हमें दिखता है कि एक खूब कहा गया है यहाँ पर पौलुस के द्वारा 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 10 वर्स 5 में, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 पद 5 में कहता है कि टेक एवरी थॉट कैप्टिव, हर एक भावनाओं को कैद कर ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जानते हैं कि भक्त पौलुस कहता है कि हमारे जितने भी बुरे भावनाएं हैं, राइट, जितने भी परमेश्वर के विरुद्ध में जो कार्य का जो भावना है, the things that thought that is contrary to the gospel, contrary to God and contrary to holiness, we have to captivate it, right? Captive का मतलब क्या है? We capture it and we keep it separate. एंड हम जानते हैं कि ये जो भावनाएं हैं, बुरे भावनाएं, इसको हमें कैद करना है। कैद का मतलब है उसको हम लोग को जेल में डाल देना है, राइट? उसको फिर कभी वापस अपने ज़िंदगी में मौका ना दें आने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि ये बुरे ख्यालात है जो अच्छा नहीं हमारी ज़िंदगी में बर्बादी ला सकता है, उसको हम लोग कैद करें। इसी तरह से भक्त पौलुस कहता है इसको हम लोग कैदी बना के रखें, उसको छुटकारा ना मिल सके। तो हम जानते हैं कि जब ये बुरे भावना हमारे ज़िंदगी में आएगा तो वो है ना बुरे काम करेगा, राइट? इफ़ वी अलाउ the thoughts to come and take root in our hearts, in our minds, and it will go loose and it will be wild. हम जानते हैं कि हम लोग अपने आप को काबू में रख नहीं सकते, इसीलिए हमें ज़रूरत है हर एक विचारों को हम लोग कैद करके रखें जो परमेश्वर के विरुद्ध में है। एक और वचन हम देखते हैं यहाँ पर, मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 35 में कहता है, भले a good man brings out of the good treasure what is good. Praise the Lord, hallelujah. एक भला मनुष्य हर एक भला मनुष्य भलाई को लेकर आता है। Praise the Lord, hallelujah. A good man brings out the good treasure what is good. Praise the Lord. A evil man brings a evil treasure out of evilness. तो हम लोग देखता है कि आज कि अपने आप को हम लोग देखें कि किस तरह से हमारा हृदय से भावनाएं निकलता है। अच्छा हृदय अच्छे भावनाओं को प्रकट करता है। तुम जानते, इसीलिए हम अपने दिलों, अपने जो विचार है उसको साफ रखें, अच्छे अच्छे विचारों को लाकर आएँ, अच्छे ख्यालात हमारे अंदर में आएँ, ताकि हम दूसरों की ज़िंदगी में अच्छा बातों को डाल सकें। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हमारे बेपुरखाएँ हैं, जो पादी लोग हमसे पहले गए थे या है अभी भी अच्छे बात हमसे करते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे जो बुज़ुर्ग थे
थे, हमारे आजा आजी, नाना नानी, उनसे कई बातों को हम लोग सीखा है, अच्छे विचारों को। तुम जानते हैं उन विचारों को हम लोग कार्य रूप देते हैं हमारे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हमारी अच्छा विचार होगा तो हमारा ज़िंदगी भी अच्छा होगा। अगर अच्छा विचार है तो हमारा दिल अच्छा होगा। जिस तरह से कहा गया है, वी नीड टू हैव अ प्योर हार्ट, हमें एक शुद्ध आत्मा, हृदय होना ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राइट, दूसरा बात हम देखेंगे यहाँ पर, कहता है कि जबकि हम एक शुद्ध हृदय को पाना चाहते हैं तो हमारा ज़िंदगी शुद्ध होना ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ज़िंदगी हमारा कैसा शुद्ध होए, तुम जानते हैं कि हमारे जीवन से ना हमारा दिल से ताल्लुकात है। प्रेज द लॉर्ड, राइट। जो कार्य हम करते हैं वो अगर हमारे हृदय पे ना बुरा असर करता है तो हमें उसको करना बंद कर दें। हम जानते हैं कुछ हमारे अंग है ना, ये हमें बुराई की ओर ले जा सकता है, हमारा जो मन को दूषित कर सकता है और अशुद्ध के बजाय। तो इस तरह से हम जानते हैं कि पहला चीज़ हम देखते हैं हमारा ज़ुबान ना और टंग, राइट। एज ना किसी ने कहा कि आवर टंग एज द पावर टू गिव लाइफ और ब्रिंग डेथ। हमारे जो ज़ुबान है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21 में कहता है, हमारे ज़ुबान में इतना ताकत है कि हम किसी को मार सकते हैं, किसी को हम बचा भी सकते हैं, किसी को हम उसको मौत की घाट उतार सकते हैं और किसी को मौत की घाट उतारने से उसको बचाकर बाहर भी ला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ज़ुबान में राइट, ज़ुबान में बहुत बड़ी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम जानते हैं कि ज़ुबान को हमें काबू में रखना बहुत ज़रूरत है। आज कई लोग कितने लोगों को ठेस पहुंचाया है और हम जानते हैं कितने लोगों को आज ऐसे दुख में, पीड़े में डाल दिए हैं और ज़िंदगी भर वो रोते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मुसीबत में थे, क्लेश में थे, उनको उस मुसीबतों से शब्दों के द्वारा उनको बताकर, सिखाकर उनको सही मार्ग पर लेकर आया। आज लोग अच्छे रास्ते में चलते हैं, पुराने बातें सब छोड़कर नए बातों में आगे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरह से हम देखता है कि एक व्यक्ति को हम देखते हैं पुराने नियम में, और उन्होंने चाहा कि परमेश्वर के लिए भवन को बनाए। एंड दिस मैन he loved God and he wanted to build a temple for the Lord, and he gathered all the materials, सब जो बिल्डिंग का सामग्री है सब बटोर लिया और चाहा कि परमेश्वर का भवन को बनाने के लिए। मगर परमेश्वर ने उसको रोकथाम लगाया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तुम हमारे जो भवन इसको बना नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हारे हाथ में खून है। और हम जानते हैं कि इस तरह से ना कई लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जबकि हमारे हाथ खराब है, बुरे काम किए हैं। तो हमें सुधरना है अपने जीवन को और देखना है कि हम ना परमेश्वर के लिए अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने हाथ को साफ रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ब्लड स्टेन्ड हैंड्स can't used to build the God's house। तो इस तरह से हम देखता है कि जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, वॉक ब्लेमलेसली बिफोर मी, राइट। हमारे सामने सीधे होता चला जा। तो हम जानते हैं कि आज हमें या सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर में अगर हम हैं तो हमारे ज़िंदगी में ना अच्छाई होना ज़रूरत है। वी नीड टू सी दैट वी वॉक ब्लेमलेसली बिफोर मैन एंड बिफोर गॉड। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर आज हमें चाहता है कि हमारा ज़िंदगी शुद्ध रहे ताकि हमारा हृदय शुद्ध रहे और हम परमेश्वर को देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। आइज़ाया चैप्टर 1 वर्स 15 to 18 में हमें मिलता है, जो व्यक्ति खून से उनके हाथ रंगा हुआ है और परमेश्वर उसको कहता है कि तुम्हारे हाथ में लहू है और तुम गुनहगार है। और हम देखते हैं कि उसी में अगर आगे जाएंगे, कहता है कि परमेश्वर कि वो अगर परमेश्वर के पास वो व्यक्ति जाता है तो परमेश्वर उसको धोकर साफ करता है। कहता है कि हीम किनाई, राइट, तुम्हारे ज़िंदगी को मैं साफ करूँगा। आई विल वॉश यू वाइट इज स्नो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे हमें कहता है कि अगर एक व्यक्ति गुनाहगार है, पाप किया है, राइट, उसके लिए क्षमादान है, उसके लिए परमेश्वर के पास जगह है। प्रेज द लॉर्ड। व्हेन वी सरेंडर आवर लाइफ टू गॉड, व्हेन वी कम टू हिम एंड गॉड विल लिफ्ट अस अप एंड ही वॉश अस क्लीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें साफ करेगा, हमें माफ़ करेगा और अपना बना लेगा। प्रेज द लॉर्ड। अंत में कंक्लूजन में हम लोगों ने जिस तरह वचन को देखा है, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8 कहता है कि ब्लेसेड आर द प्योर
इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग परमेश्वर को या स्वर्ग से इस पार से नहीं देख सकते हैं, राइट। वी कांट सी गॉड, और किसी ने परमेश्वर को पूरा देखा नहीं है और ना देख सकता है। और हम जानते हैं कि हम लोग पाप भरी दुनिया में हैं, परमेश्वर पाप भरी दुनिया में आ नहीं सकता। और इस तरह से हम जानते हैं कि हमारा सब विचार है परमेश्वर को देखने के लिए। वी नो दैट वन डे व्हेन वी गो टू हेवन वी विल सी गॉड फेस टू फेस। हम लोग परमेश्वर को देखेंगे फिजिकली, ना शारीरिक तौर से, जिस तरह से भी वो है। प्रेज द लॉर्ड। मगर हम जानते हैं कि परमेश्वर को हम देखते हैं ज़रूर, हर एक दिन, हर एक समय, हर एक चीज़ों में। वी कैन सी गॉड इन द नेचर, वी कैन सी गॉड इन द क्रिएशन। हम परमेश्वर को इन प्रकृति में देखते हैं, परमेश्वर के हम उसके जो उत्पत्ति में देखते हैं। आत्मिक तौर से हम लोग देखते हैं परमेश्वर को हमारे ज़िंदगी में, ना उन्होंने चंगाई लेकर आया, पर हम देखते हैं वाह परमेश्वर कैसा अद्भुत काम ने किया, तुम्हारे हाथों को हमने देखा, हमें चंगाई जो मिला है। परमेश्वर के हाथों को हम देखते हैं, उसके आत्मा को देखते हैं हमारे जीवन में काम करते हुए। हमें वो बुद्धि देता है, समझ देता है और ज्ञान देता है। प्रेज द लॉर्ड। और कई समय पर जो प्रार्थना का जवाब मिलता है, ये परमेश्वर के हाथ में तो है क्या। तो हम देखता है कि परमेश्वर ज़रूर अपने आप को हमारी ज़िंदगी में ना पेश करता है अपने ढंग से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरह से हम देखता है कि परमेश्वर हर एक चीज़ों में, अच्छाई में भी अपने आप को दिखाता है और बुराइयों में भी हम परमेश्वर को देखते हैं। अभी किसी ने आज किसी से बात कर रहा था, बोले कि ये जो लॉकडाउन में हम लोग सब घर पर हैं, और इस तरह से ऐसे कभी मुश्किल से ऐसे होता करता रहा हमारे परिवार में कि हम लोग सब मिलकर हर दिन ना प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को उपासना करते हैं। और हम जानते हैं कि यू नो इन गुड टाइम्स एंड इन बैड टाइम्स गॉड शोज अप, राइट। वी कैन सी हिज हैंड। Like this brother, he was saying that we family coming together in this lockdown, in this time of difficulty, we can't go out, but we family getting together. हम लोग जानते हैं कि now family are getting stronger, praise the Lord. और तो इस तरह देखते हैं कि हम लोग एक दूसरे से, हमारे पास समय है बातें चित करने के लिए। एक व्यक्ति से कई अरसे हुआ मैंने बातचीत किया, और हम जानते हैं कि सप्ताह मैंने उसको कॉल किया और काफ़ी देर तक बात किया, हाल चाल पूछा। तो हम जानते हैं कि कभी कभी ऐसे हम लोग के नज़र में ये बुरा है, मगर इसमें कुछ अच्छाइयाँ भी होता है, जिसको ना जिस तरह से मैंने कहा कि ये हमको एक साथ में लेकर परिवार के रूप में या दोस्त रिश्तेदारों को, राइट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं देखता है कि when we keep our heart pure, we definitely see God's hand in our lives. अगर हम अपने हृदय को ना शुद्ध रखेंगे, और हम ज़रूर परमेश्वर को हर एक स्थिति में, हर एक जगह पर देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। Praise the Lord. लीजिए हम लोग इसे प्रार्थना करेंगे। Let's all pray. Father God, once again we come into thy presence, O God. We thank you for your goodness. We thank you that you blessed us, and you are keeping us, and you are protecting us from all evil things, O God. We thank you for your mercy. Thank you for your goodness, Lord Jesus. Even in this time we worship you, we praise you, and we give all the glory, all the honor to you. Whatever comes in our life, it is for a purpose. परमेश्वर, जो कुछ भी हमारे जिंदगी में होता है, एक कार्य खास उसका मकसद होता है के पीछे। प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए, जैसे कि परमेश्वर हमारे कलीसिया के लोगों के साथ में आज परमेश्वर आपके चर्चा हम कर सके, और जितने लोग और जो सुनते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपका अभिषेकता, आपके आशीष रहे। प्रभु, जो कोई आपको नहीं जानता वो आज जान जाए, जो आपको स्वीकार नहीं किया वो आज आपको स्वीकार कर सके, ताकि उनके जिंदगी में आपका पहचान आ जाए परमेश्वर, ताकि उनके अंदर, उनके मन भी परमेश्वर शुद्ध हो सके, ताकि वो आपको देख सके जिस दिन उनका बुलाव होगा। प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर
परमेश्वर। हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए परमेश्वर, हर एक को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। अगले बार मिलने तक तेरे आशीष, तेरे दया, तेरा प्रेम हम सभी के साथ बना रहे। यीशु नाज़री के नाम से दुआ करते हैं, आमीन, आमीन।